Hello students, today we are going to start with our next chapter, that is AC circuits. This is second chapter from your electrical section. Okay, first electrical section का ये second chapter है, ठीक है. AC circuits weightage is 12 marks. Okay, so in this particular chapter we have to study AC, that is alternating current circuits. Okay, and we have to study different terminologies, different terms related to AC signals. Okay, then star connected system, delta connected system. Then we have to see or analyze different circuits using different components like inductor, capacitor, resistor, then combination of them, and some problems. Okay, so this chapter is important. Okay, and little bit not tough but थोड़ा सा एक confusing या फिर ऐसा कुछ लग सकता है आपको, ठीक है. So pay attention and let us start with the chapter. ठीक है. Now before I start the chapter, okay, let me tell you what is AC signal and DC signal, क्योंकि बहुत लोगों को confusion होता है कि AC exactly क्या है, DC दोनों में क्या difference है. Okay, so what is AC signal? AC signal, if you see the waveform, this is the waveform of AC signal. It looks like, I mean, this is a sine wave. Okay, आप लोगों को पता होगा what is sine wave, मैंने पढ़ाया है ना ये आपके इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर में. तो ये है sine wave. Okay, so if you have this sinusoidal wave and then this is AC signal, alternating signal है ना, alternate हो रही है. After a particular time, okay, it will repeat itself. Okay, if you see this, okay, if the signal is like this signal is actually like this, it will continue. Okay, it will continue like, okay, so after this particular time, suppose from here to here is the 5 seconds, then after 5 seconds again it will repeat itself. So it is alternating current or alternating signal, ठीक है. So this is AC signal and this is your direct current, that is DC signal, which is a direct current. Okay, now I'll tell you what is the exact difference. Okay, how we draw AC signal, something like this. Okay, ऐसे AC signal हम लोग बनाते हैं, बराबर है. Okay, sorry, it will continue further. Okay, suppose this is any signal on x-axis. On x-axis this is time. Okay, x-axis पे क्या है, time है, and y-axis पे क्या है, signal है. ओके, सिग्नल है. कौन सा सिग्नल है वो हम लोग देखते हैं बाद में. ये सिग्नल जो है ना, ये कोई भी सिग्नल रह सकता है. इट कैन बी करंट, इट कैन बी वोल्टेज, इट कैन बी पावर, एनीथिंग. ओके, एंड नाउ बिकॉज वी आर इन इलेक्ट्रिकल, वी हैव टू टॉक अबाउट वोल्टेज, करंट एंड पावर. ओके, दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज. ओके, अलग जो क्वांटिटीज रहती है, ओके, उसके बारे में वेट वगैरह, मास, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो सब फिजिक्स में है. यहाँ पे हम लोग कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट वोल्टेज, करंट, पावर, टाइम. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज. सो आई हैव ड्रॉन वन सिग्नल ओवर हियर. सो right now I am writing signal. Okay, but this can be current signal, this can be voltage signal, this can be power signal, anything. Okay, so suppose this is a signal, this is time. Okay, so suppose this is 0, this is 1 second, this is 2 second, this is 3 second, this is 4 second, and so on. ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जो हमारा है, सपोज दिस इज करंट सिग्नल, सपोज दिस इज विद सिग्नल करंट सिग्नल. देन यहाँ पे कौन सा वैल्यूज आएगा वाई एक्सिस पे? 1 milliampere, 2 milliampere, 3 milliampere. what is milli? Milli is 10 raised to minus 3, and what is ampere? Ampere is unit of current. Okay, ये तो सबको पता होगा. 4 milliampere and so on. Okay, now if you see the signal, okay, listen carefully, if you see the signal, this signal continuously varying with respect to time. जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 1 सेकेंड से फिर 0 से 1 सेकेंड तक आ गया, 0 से 1 सेकेंड के लिए the signal has increased to this level, it has changed to this level, 1 to 2 this level, then 2 to 3 this level, and then again it is decreasing, okay, becoming 0, again it is going to negative level, then it is again coming up, okay, upwards, and then again 0, again it is going to positive value, and then again negative value. Are you getting? So this is how the signal is varying. Means what? This signal is continuously varying with respect to time and varying in magnitude and direction. If you see, ये सिग्नल का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली वेरी होता जा रहा है. पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, वापस नेगेटिव में, फिर वापस ऊपर. कहीं पे भी आपको कांस्टेंट नहीं दिखेगा. एवरीवेयर इट इज चेंजिंग. ओके, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू ऑफ द सिग्नल. सपोज जब वो 0 है, व्हेन टाइम इज 0, करंट इज ऑल्सो 0.
व्हेन टाइम इज सपोज दिस इज 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड पे उसका वैल्यू है कुछ 0.1 या 0.2 मिली एम्पियर्स, देन एट 1 सेकेंड वैल्यू इज 1 मिली एम्पियर, एट 2 सेकेंड वैल्यू इज 2 मिली एम्पियर्स, एट 3 seconds value is around somewhere here, which is you can say 2.5 milliamperes. Are you getting? Okay, so everywhere its value or its magnitude is also changing. What we say? Magnitude. Okay, magnitude means value of that particular signal. So magnitude is also changing. So such signal is called as AC signal. So signal which varies in magnitude as well as direction periodically is called AC signal. Periodically is also important. Why periodically? अगर ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो हम लोगों को ऐसा कुछ सिग्नल भी मिल सकता है. देखो कुछ भी हो रहा है इसमें, नॉट नेसेसरी कि सेम सिग्नल मिले, सिमेट्रिकल मिले, ऐसा नॉट नेसेसरी नहीं है. इट कैन वेरी लाइक दिस इफ इट इज नॉट पीरियोडिक. आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? So signal which varies in magnitude as well as direction is called as AC signal. Okay, and this is AC signal. So here I have shown current as a signal and or current quantity I have used, and this is time. Okay, next is DC signal. So let us see what is DC signal. I have drawn DC signal like this. Suppose again this is time, x axis तो हमारा time है, y axis अभी कंसिडर करते हैं कि वोल्टेज है, वोल्टेज सिग्नल है हमारा. ठीक है, आप करंट कंसिडर करो, वोल्टेज सिग्नल, वोल्टेज कंसिडर करो, पावर कंसिडर करो, कुछ भी करो. ठीक है. So and if you see DC quantity looks somewhat like this, or DC signal looks somewhat like this. Again I will take this as 0, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and so on. Here I will take 1 volts. Now this is voltage, 2 volts, 3 volts, this is 4 volts. Are you getting? ये 4 volt है suppose. ठीक है. Now if you see the signal with increase in time, the value of this signal remains same. Suppose इसका वैल्यू यहाँ पे है 4 volts. ये वैल्यू कितना है उसका? 4 volts है. ओके, तो if you see at 1 second the value is 4 volts, at 2 second value is 4 volts, at 3 second value is 4 volts. Can you see any changes in this value? No. Okay, the value of this signal is constant. Are you getting? Then that means magnitude is constant. Then if you see the direction of this signal is also same. वो एक ही direction से आगे आगे जा रहा है. ऐसे कुछ चेंज हो रहा है क्या कि यहाँ पे आ गया फिर ऊपर गया नीचे? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. Direction is same, constant. Okay, so such signal is called as DC signal. मतलब DC signal कौन सा सिग्नल है? Signal which does not vary with respect to time. Okay, that signal is called as DC signal, or signal whose magnitude and direction both are constant or both are same. Magnitude भी same है, direction भी same है. Such signal is called as DC signal. Okay, so signal which is constant with respect to time is called as DC signal. Simple. Okay, which is constant with respect to time. Time के रिस्पेक्ट से ये हमेशा constant ही जा रहा है. मैंने यहाँ पे करंट की क्वांटिटी दिखाया है, आप कोई भी दिखा सकते हो यहाँ पे. Are you getting? So this is your DC signal. So this is the difference between AC signal and DC signal. Okay, now next we are going to see some terms. Okay, some terms related to signal. Okay, or waveform. Okay, waveform के related कुछ terms है वो हम लोग देखने वाले हैं. So पहले मैं आपको एक waveform draw करके दिखा रही हूँ यहाँ पे. Suppose this is a waveform. ठीक है, ये एक waveform है. ओके, ये अगेन है हमारा टाइम एंड क्या कंसिडर करते हैं वेवफॉर्म को? लेट अस कंसिडर दिस एज वोल्टेज. फाइन, वोल्टेज. ठीक है. ओके, दिस इज वोल्टेज. ओके, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वट एवर. यहाँ पे क्या रह सकता है? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट. सपोज दिस इज 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, वट एवर. ओके, ये हो गया हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, सो ऑन. ठीक है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली, क्योंकि अभी ये बहुत सारे डेफिनेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड इनमें से 2 डेफिनेशंस या 4 डेफिनेशंस हमेशा आते हैं आपको. इफ़ दे आस्क 4 डेफिनेशंस इट इज़ फॉर 4 मार्क्स. इफ दे आस्क 2 डेफिनेशंस इट इज़ फॉर 2 मार्क्स. ओके, सो क्या क्या डेफिनेशन से क्या क्या लर्न करना है? देखो, पहला तो है वेव फॉर्म. दिस इज कॉल्ड वेव फॉर्म. वेरिएशन ऑफ सिग्नल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड वेव फॉर्म.
एक सिग्नल को, ये कौन सा सिग्नल है हमारा अभी, V मतलब क्या है वो, वोल्टेज। सपोज एक वोल्टेज सिग्नल है हमारे पास, एंड इफ वी हैव drawn graph of that voltage signal, then that graph is called as waveform। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, this is our voltage waveform। ये हमारा कौन सा वेवफॉर्म है, वोल्टेज वेवफॉर्म है। दिस इज अवर वोल्टेज वेवफॉर्म। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आई विल राइट एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड, ओके। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है, एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो, ओके। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको, okay, this is zero, this is origin zero, so this level is called as mean level। क्या level बोलते हैं उसको, mean level। ये हमारा mean level है, सॉरी, ओके, ये हमारा mean level है या फिर कौन सा level है, zero level है। this is zero level या और mean level, x axis, right, okay। now what is amplitude, see, हाँ, amplitude मतलब मीन लेवल से जो आपके वेवफॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द पीक, दिस इज द पीक ऑफ दिस वेवफॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू, और दिस इज कॉल्ड पीक और मैक्सिमम वैल्यू, ओके, पीक और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंड जीरो से या मीन लेवल से ये जो पीक है यहाँ तक, ये जितना भी वैल्यू है फ्रॉम मीन टू दिस पीक लेवल, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आर यू गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ओके। ये जो डिस्टेंस है और ये या फिर ये जो वैल्यू है फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। डेफिनेशंस में आपको अच्छे से वापस एक बार बताऊंगी, ये सिर्फ आपको वेवफॉर्म समझा रही हूँ, ठीक है। So this is called as amplitude. If you see here the value of amplitude, if you see here the value of amplitude, amplitude का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, जीरो से लेके मैक्सिमम तक। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सपोज मैक्सिमम वैल्यू है हमारा 5 वोल्ट्स, देन द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज 5 वोल्ट्स। इन दिस केस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज 5 वोल्ट्स, ओके। ये 5 वोल्ट्स यहाँ पे है, सपोज ये वैल्यू 5 वोल्ट्स है, देन मैक्सिमम वैल्यू इज अवर 5 वोल्ट्स, एंड मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू इज डिनोटेड बाय VM। क्या बोलते हैं उसको, VM, मैक्सिमम वोल्टेज। अभी मैंने V क्यों लिखा, बिकॉज ये हमारा वोल्टेज सिग्नल है। इफ दिस इज करंट सिग्नल, आई वुड हैव रिटन IM। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम करंट। इफ इट इज मैक्सिमम वोल्टेज देन इट इज VM, अंडरस्टूड। VM मतलब ऐसा नहीं लिखना है, V के आगे M नहीं लिखना है आपको, V के बेस में M को लिखना है, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज, अंडरस्टूड। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू विच इज 5 वोल्ट्स, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड विच इज ऑल्सो 5 वोल्ट्स, अंडरस्टूड, ओके। नाउ ये जो सिग्नल है ना, इफ यू सी दिस इज सिमेट्रिकल, जीरो के ऊपर जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू उसका जीरो के नीचे रहता है, सिर्फ ये वैल्यू नेगेटिव रहेगा, ये वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। सो अगर इसका पीक वैल्यू 5 वोल्ट्स है, इसका भी पीक वैल्यू कितना रहेगा, 5 volts, but it is minus 5 volts. Then this must be 1 volt, minus 1 volt, minus 2 volt, minus 3 volt, minus 4 volt, okay, ठीक है। ऐसा कुछ उसका वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज है, ओके। बट दिस इज सिमेट्रिकल, एंड ऊपर जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू नीचे रहेगा, बट ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव वैल्यू, अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। देन नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, ये जो हमारा वेवफॉर्म है या ये जो हमारा सिग्नल है, ओके, ध्यान से देखो, ये सिग्नल में इफ यू सी, ओके, फ्रॉम जीरो लेवल, फ्रॉम जीरो ओरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल, ओके। ये एक जो है और ये एक जो है, दोनों एक साथ अगर मिलते हैं तो दे आर कॉल्ड साइकिल, उनको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। एंड ये जो पॉजिटिव में जो वेव है उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। ध्यान दो, देखो मैंने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। इफ दिस इज अ कंप्लीट साइकिल देन दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज अगेन हाफ साइकिल, बराबर है। एंड ये बिकॉज ये पॉजिटिव की तरफ है, सो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड from origin to this point this is called as a one complete cycle। इसको क्या बोलते हैं, one complete cycle। so यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको क्या बोलेंगे, साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, साइकिल। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी हमारा रहेगा ना,
एक्स एक्सिस इज टाइम ओनली, तो टाइम पीरियड एक्स एक्सिस पे ही आएगा। और टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा, अगेन जितना साइकिल है उतना ही टाइम पीरियड। क्यों बताती हूँ। ओके, दिस इज ऑल्सो ए टाइम पीरियड। ओके, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम टेकन बाय दिस सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल और दिस क्वांटिटी, आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो उसको, टाइम टेकन बाय दिस quantity or signal to complete one complete cycle. Okay, to complete its one complete cycle is called as time period. ये साइकिल को या ये सिग्नल को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे आप टाइम पीरियड। अंडरस्टूड? सो टाइम टेकन बाय दिस सिग्नल टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो दैट इज योर टाइम पीरियड। समझ में आ गया? नेक्स्ट टर्म है और क्या बचा हमारा, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? लिसन, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर का, कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। सपोज ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम लगा 1 सेकेंड, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए, इफ इट हैज़ टेकन 1 सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। अभी 1 सेकेंड, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 हर्ट्ज। सपोज हमारा 1 सेकेंड है फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक हमारा इतना साइकिल कंप्लीट होने के लिए सपोज 1 सेकेंड लगा। यहाँ से यहाँ तक क्या बोला मैंने, 1 सेकेंड लगा है हमको। ओके, सो इफ दिस इज 1 सेकेंड, देन इन 1 सेकेंड हाउ मेनी साइकिल्स आर कवर्ड, 1 and 2। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा हमारा, 2 हर्ट्ज बनेगा, 2 हर्ट्ज, HZ, 2 हर्ट्ज। Okay, why is it so? Because 2 cycles are completed in 1 second, so it is 2 hertz. Are you understood what is frequency? So frequency is number of cycles covered in 1 second is called frequency. तो 1 second तो हमारा constant रहने, same रहने वाला है। Okay, मतलब फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में 1 सेकेंड के हिसाब से ही देखेंगे कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आर यू गेटिंग? ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू योर वेव फॉर्म। सो लेट अस सी द प्रॉपर डेफिनेशंस। ओके, फर्स्ट इज वेव फॉर्म। सो व्हाट इज वेव फॉर्म, क्या बताया मैंने, इसको वेव फॉर्म बोलते हैं जो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। सो एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इज नोन एज वेव फॉर्म। सिंपल, ये तो ऑल्टरनेटिंग एसी का डेफिनेशन है। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ है, अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो उसको बोलेंगे वेव फॉर्म। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सिग्नल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये टर्म क्या आ गया अभी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या है, देखो ये मैंने क्या बोला, दिस इज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या, कोई भी वैल्यू, कोई भी इंस्टेंट पे अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सपोज आई वांट टू नो द वैल्यू एट 1 सेकेंड। ओके, सो हमेशा आप क्या बोलोगे, मुझे 1 सेकेंड पे वैल्यू चाहिए, मुझे 2 सेकेंड पे वैल्यू, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, व्हाट यू विल से, आई वांट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेवफॉर्म का वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, सो वैल्यू एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब 1 सेकेंड पे है, 1.2 सेकेंड पे है, 1.3 पे है, या 2 सेकेंड पे है, या किसी भी सेकेंड पे, बिकॉज देर आर इफ यू सी infinite values, there is 0 volt, then there is 0.1, 0.2, 0.12, 0.13, 0.14. There are instantaneous value, infinite value, and these all values are called as instantaneous value. So ये सारे instantaneous values जो है उसका अगर आप graphical representation करते हो तो उसको बोलते हैं waveform. Understood? नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आ गया इसका भी डेफिनेशन। सो द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ऐसे क्यों बोला है, बिकॉज उनको पता नहीं है कि आपने वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ किया है या करंट वेवफॉर्म ड्रॉ किया है। सो वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
अंडरस्टूड? किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप उसका वैल्यू लेते हो तो उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी मैंने आपको सारे टर्म समझाए हैं वेवफॉर्म से, अभी हम लोग फटाफट डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकिल। व्हाट इज अ साइकिल? देखो यहाँ से यहाँ तक जो एक कंप्लीट सिग्नल है उसको क्या बोलते हैं? वन साइकिल। आई टोल्ड ना, दिस इज व्हाट, वन साइकिल। सो when you have positive half cycle plus negative half cycle, it is called cycle, or addition of positive values and negative values is called as cycle. Okay, so cycle is what? A complete set of positive and negative values, a complete set of positive and negative values of alternating voltage on current is termed as cycle. So complete set, ये पूरा complete set हो गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू का और नेगेटिव वैल्यू का जो कंप्लीट सेट है। ओके, कौन से सिग्नल के लिए? वोल्टेज या फिर करंट, तो उसको बोलते हैं क्या? साइकिल। समझ में आ गया? ओके, बाय हार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सिंपल, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पासेस थ्रू इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ओके, नंबर ऑफ साइकिल, या फिर सिंपल बोल सकते हो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, एज सिंपल एज दैट। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इतना बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ साइकिल्स पासिस थ्रू इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इट इज डिनोटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय व्हाट? एफ बराबर, एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। एच जेड है ना, दिख रहा है क्या अच्छे से? हर्ट्ज। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। समझ में आ गया? उसका यूनिट है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिनोट करते हैं टी से। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? क्या बताया मैंने? टाइम पीरियड मतलब क्या? एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट कैन बी वोल्टेज और करंट, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम, एज सिंपल एज दैट। एंड विच इज टी इज इक्वल्स टू, ओके, विच इज टी, एंड you must be knowing relationship between time period and frequency. Time period and frequency का relation क्या है? They are inversely proportional. So t is equals to 1 divided by f, या f is equals to 1 divided by t, ऐसे भी लिख सकते हो आप। f is equals to 1 by t और t is equals to 1 by f. Okay, तो ये हो गया हमारा time period. Understood what is time period? Okay, next let us see एंगुलर वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अब ये वेलोसिटी मतलब पता है आप लोगों को, मतलब क्या स्पीड वगैरह जो भी रहता है, ठीक है। सो यू मस्ट बी नोइंग कि क्या इसका मीनिंग है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर मीन्स व्हाट? एंगल। सो एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर होता है। ओके, सपोज ये है, सपोज दिस इज योर वेवफॉर्म और यहाँ पे कुछ एक एंगल है। कैन यू सी? यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा, तो कितना एंगल एक सेकेंड में कवर हो रहा है? सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ एक एंगल है, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक एंगल कवर हो रहा है। ओके, मतलब सपोज दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360, है ना। पता है ना सब लोगों को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा? आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट। हाँ, आपका फिजिक्स में हुआ होगा, है ना, 9-10 में फिजिक्स में हुआ होगा फिर भी। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? कि एक सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर होता है, कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर होता है। राइट नाउ आई हैव टेकन एक्स एक्सिस एज टी, बट इफ आई टेक एक्स एक्सिस एज एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। सो इफ आई टेक एक्स एक्सिस एज ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी, आई हैव टू राइट दिस एज 0, दिस एज 90 और दिस इज 45, दिस इज 180। मुझे यहाँ पे पूरे एंगल्स लिखने पड़ेंगे, मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं लिख सकती हूँ। समझ में आ गया? इफ आई कंसिडर एक्स एक्सिस एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो सिंपल उसका मीनिंग जान लो क्या है। उसका मीनिंग है एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। बस एक सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज डिनोटेड बाय, ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है? ओमेगा। ऐसा ओमेगा निकालना है आपको, ठीक है। सो दिस इज ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। This is 2 pi divided by t is your formula of angular distance, angular velocity, and one more formula 2 pi f. तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अभी यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई टी क्यों है? बिकॉज एफ एंड टी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज
टू पाई एफ या फिर 2 पाई/t। अंडरस्टूड। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला सबको याद रखना है, बाय हार्ट करके रखो। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ध्यान में रखना, वेयर एफ इज फ्रिक्वेंसी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज एम्पलीट्यूड। मैंने अभी अभी आपको बताया एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मीन वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जितना भी उसका वैल्यू है, दैट इज जितना भी उसका वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ओके, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हाफ भी है पॉजिटिव हाफ भी है, तो आपको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ ऑफ एन एसी वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई मैक्स और आई मैक्स। क्या बताया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई मैक्स और आई मैक्स। मैंने यहाँ पे क्या बताया, आप यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपको वी एम या फिर आई एम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई एम मतलब मैक्सिमम करंट, वी एम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, कुछ लोग एम लिखते हैं, कुछ लोग एम ए एक्स लिखते हैं। ओके, आप कैसे भी लिख सकते हो उसको, आइदर यू कैन राइट आई एम, यू कैन राइट आई मैक्स, यू कैन राइट वी एम, यू कैन राइट वी मैक्स। ओके, एंड समटाइम्स इंस्टेड ऑफ वी दे राइट ई, इंस्टेड ऑफ वी दे राइट ई। तो ई भी मैंने बताया था आपको, ई मतलब क्या है, ई इज ऑल्सो is what EMF, and EMF is also kind of voltage, so sometimes they will write E, sometimes they will write V, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सेम थिंग, वो लोग सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ ऑफ एन AC वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E मैक्स और I मैक्स, वेर E उन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे EMF लिया है, आप वहाँ पे V भी लिख सकते हो। ठीक है, next is okay, root mean square value. Okay, this is also known as RMS value, this is known as RMS value और root mean square value। इसका मीनिंग क्या है, root mean square value। ओके, अभी ये डेफिनेशन ना थोड़ा टफ है, मतलब कंफ्यूजिंग है, बाहर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट लेट अस सी क्या है डेफिनेशन और क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग। ओके, इट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, दैट इज फाइन, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच विल डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन सेम टाइम और वुड प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट एज व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड। बाप रे, कुछ भलता ही बोल रहे हैं, है ना। सो लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग। मैं ये 2-3 बार रीड करूँगी, ध्यान से सुनो, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो लोग क्या बता रहे हैं। ओके, इट इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ दैट डायरेक्ट करंट, वैल्यू ऑफ, पहले क्या बता रहे हैं देखो, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। वैल्यू ऑफ दैट डायरेक्ट करंट, उसका कितना भी वैल्यू रह सकता है हमको पता नहीं है। वैल्यू ऑफ दैट डायरेक्ट करंट विच विल डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क, इसका कुछ वैल्यू, डीसी का कुछ वैल्यू जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, विच विल डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन सेम टाइम, सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन same time or would produce same heating effect, okay, or would produce same heating effect as when alternating current is applied, as when alternating current is applied, as when who is applied, as when who is applied, alternating current is applied। अभी देखो, अभी सिंपल किया, अभी देखो क्या बता रहे हैं। RMS वैल्यू इज डिफाइंड एज DC वैल्यू और डायरेक्ट करंट वैल्यू which will do some work or same work in same time as when AC is applied। मतलब AC अप्लाई करने के बाद जितना AC सर्किट काम करेगा सेम टाइम में, वो सेम काम आपका DC सर्किट या DC वैल्यू भी करेगा फॉर सेम टाइम एंड सेम वर्क। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं ये लोग। If you apply some value of DC, okay, or some DC value, then it will do same work as that of AC in same time। Simple language में ऐसे बोलूँगी कि DC जो है ना, वो AC जितना ही काम करेगा, अगर आप सेम टाइम के लिए वो वैल्यू अप्लाई करते हो तो वो सेम वर्क उतने टाइम में वो सेम वर्क करेगा। मतलब AC और DC दोनों भी सेम काम करेंगे सेम टाइम में। समझ में आ रहा है?
नाउ आई हैव ट्राइड, ये बहुत मतलब ज़रा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट मैंने ट्राई किया है, होप यू अंडरस्टूड। मैं वापस एक बार रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। इट इज़ डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच विल डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन सेम टाइम और प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट। अभी ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। और वुड प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट, ओके। सो same amount of work in same time when alternating current is applied, okay। so एक 4-5 बार अच्छे से रीड करो, मैंने क्या बोला है वो भी अच्छे से सुनो, तो आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज RMS वैल्यू, एंड RMS वैल्यू इज डिनोटेड बाय VRMS। जैसे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे डिनोट करते हैं VM से, वैसे RMS वैल्यू हम लोग डिनोट करते हैं VRMS से, ओके। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। एंड अगर करंट है तो हम लोग लिखेंगे IRMS। समझ में आ गया। नाउ देयर इज वन रिलेशनशिप बिटवीन RMS वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। RMS एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, RMS वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? सपोज वोल्टेज है हमारे पास, देन VRMS इज इक्वल्स टू V maximum डिवाइडेड बाय √2। समझ में आ गया, ओके। VRMS इज इक्वल्स टू VM अपॉन √2, मतलब VRMS इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। ये है रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर करंट है तो IRMS इज इक्वल्स टू IM अपॉन √2, सेम। समझ में आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या? सिंपल। एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू। क्या? अगर आप सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक साइकिल के लिए, सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का अगर आप एवरेज लेते हो तो उसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू। समझ में आ गया? सिंपल। सो व्हाट इज एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वेव शेप इज द अरिथमेटिक मीन। मीन मतलब क्या? एवरेज। इज अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक एवरेज एट इक्वल इंटरवल्स ओवर हाफ साइकिल ऑफ दैट वेव इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू, ओके। सो इन्होंने बोला है कि अगर आप हाफ साइकिल के लिए एवरेज लेते हो, ओके। फुल साइकिल के लिए क्यों नहीं बोला? मैंने बोला पहले फुल साइकिल, बट व्हाई दे आर नॉट सेइंग फुल साइकिल? क्योंकि अगर हाफ साइकिल का वैल्यू पूरा एवरेज आता है 5 और इसका एवरेज आता है -5, तो +5 -5 विल बिकम 0, तो एवरेज वैल्यू विल बिकम 0, सो दैट शुड नॉट हैपन। सो दे आर सेइंग कि यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ओनली। समझ में आ गया? सो व्हाट इज एवरेज वैल्यू? Average value is defined as average of all the instantaneous values for one half cycle is called as average value. Again, there is relation between average value and maximum value. Again, there is relation between average value and maximum value, and that is V average. Okay, अभी average कैसे लिखेंगे? Average value voltage का average value है तो AVG and this is voltage. So V average is equals to 0.673 V maximum. 0.673 V maximum is the value of your average value, okay। और average and relation between average and maximum value। and अगर current का लिखूंगी तो I average is equals to 0.637 IM, okay। 0.637 IM मतलब सेम, आई एम सॉरी, ठीक है, 637 है, 673 नहीं, सॉरी, 637, ठीक है। सो रिलेशन इज एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 मल्टीप्लाइड बाय VM, और करंट है तो 637 मल्टीप्लाइड बाय IM। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है √2 का वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया आपको? सो दैट इज एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट इज पीक फैक्टर and form factor. Peak factor and form factor is very simple. Peak factor is defined as ratio of maximum value by RMS value. Okay, maximum value आपको पता है, maximum value means peak value. Okay, so peak factor is ratio of maximum value divided by RMS value, which is always constant. उसका value है 1.414. Peak factor, peak value नहीं, peak factor is always 1.414. and peak factor is
इक्वल्स टू और इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। सो व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? इट इज अगेन रेशियो, सो इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ओके, तो ये दो जो डेफिनेशन है ना, पीक एंड फॉर्म फैक्टर, ये दोनों क्या है? रेशो है। तो वो रेशो आपको बस आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप डेफिनेशन अपने आप से लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन लिखना है? फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। ओके, तो ये डेफिनेशन ज़्यादा आते हैं। हाँ, कौन से डेफिनेशन वो लोग पूछते हैं? डिफाइन फ्रीक्वेंसी, डिफाइन एम्पलीट्यूड, डिफाइन रूट मीन RMS वैल्यू, डिफाइन एवरेज वैल्यू, डिफाइन पीक फैक्टर, डिफाइन फॉर्म फैक्टर। ओके, देन और एक डेफिनेशन है फेज। फेज मतलब क्या? फेज इज एंगल। फेज मतलब क्या? फेज मतलब एंगल। हम लोग मैथ्स में जैसे एंगल बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल में हम लोग उसको फेज बोलते हैं। तो फेज मतलब एंगल, ठीक है। सो एंगल हमेशा किस में होता है? एंगल के लिए क्या चाहिए? एंगल के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी होना चाहिए ना। सपोज मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल बनाने के लिए, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल, ठीक है। सो इसके लिए, ये बनाने के लिए मुझे दो क्वांटिटी चाहिए, है ना। ओके, और हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो ये वाला क्वांटिटी कौन सा होना चाहिए? ये अगर करंट है तो वो ये वोल्टेज रहेगा, ये वोल्टेज है तो ये करंट है, या फिर दोनों भी वोल्टेज है लेकिन अलग अलग वोल्टेज है, तो कुछ एंगल बन गया। समझ में आ गया? सो व्हाट इज फेज इन और व्हाट इज एंगल इन इलेक्ट्रिकल? ओके, द एंगल मीन्स the phase means the angle made by vector with reference is called as phase of that vector। समझा? ओके, the angle, अभी मैंने क्या बताया? सपोज यहाँ पे मैंने ये एक वेक्टर बनाया है या एक वोल्टेज बनाया है, दूसरा वोल्टेज बनाया है। सपोज दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अदर वेक्टर, और दिस इज रेफरेंस वेक्टर, दिस इज रेफरेंस वेक्टर। देन एंगल मेड बाय or angle made by one quantity with the other quantity or angle made by one quantity with reference is called as phase। So phase is angle made by vector with reference or one vector with other vector या one quantity with other quantity is called as phase of that vector। समझ में आ गया? So this is called as phase और it is also called as phase angle। हम लोग ना कभी कभी फेज बोलते हैं, कभी कभी एक साथ ऐसे टर्म बोलते हैं, फेज एंगल। ओके, दोनों भी सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस। ओके, देयर इज वन मोर डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन इज इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। ओके, अभी ये इम्पीडेंस का मीनिंग क्या है? इम्पीडेंस मीन्स वी हैव सीन रेजिस्टेंस, बराबर। हम लोग ने रेजिस्टेंस या रेजिस्टर करके एक टर्म पढ़ा है ना, विच इज डिनोटेड बाय आर, बराबर। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, बराबर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस या रेजिस्टर का मीनिंग क्या है? ओके, व्हाट रेजिस्टर इज डूइंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर? इट लिमिट्स द फ्लो ऑफ करंट। ओके, कोई भी सर्किट में करंट का फ्लो को लिमिट करना है, कम करना है, तो हम लोग रेजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको और एक चीज़ बताया था, एवरी डिवाइस, ऑल द डिवाइसेस आर हैविंग इट्स ओन रेजिस्टेंस। हर एक डिवाइसेस के पास उसका ओन रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में। ओके, हर एक डिवाइस के पास, सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, देन दैट कैपेसिटर विल हैव इट्स ओन रेजिस्टेंस। खुद का कुछ तो थोड़ा एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, दैट वोल्टेज सोर्स विल हैव इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ आई हैव इंडक्टर विल हैव इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस। सो हर एक डिवाइस, दुनिया में कौन सा भी डिवाइस लो, सबके पास, डिवाइस क्यों, अगर आप कॉपर वायर लेते हो, व्हाट वी से, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ऐसे कंसिडर करते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट दैट इज रॉन्ग। दैट कॉपर, प्योर कॉपर वायर विल ऑल्सो हैव सम रेजिस्टेंस इन इट। आर यू गेटिंग? ओके, सो हर एक कंपोनेंट में अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। सपोज कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज XC, दैट इज कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको सिखाया है, बताया है, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग ना रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक हमारे पास है, और वो है ऐसा वाला जो डिवाइस है
इसको हम लोग रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अभी वापस कैपेसिटर के पास जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रेजिस्टर नहीं बोल सकते, तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो उसको अलग नाम दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड उसको डिनोट करते हैं एक्सी से। अगर मेरे पास इंडक्टर है, इफ आई हैव अ इंडक्टर देन आई विल, एंड सपोज वो इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है, देन दैट रेजिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाय एक्स एल विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो एल मतलब मैंने एल क्यों लिखा, इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं। सो इफ आई हैव इंडक्टेंस रेजिस्टेंस देन उसको बोलेंगे रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय एक्स एल। तो कोई भी रिएक्टेंस होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स सी। इतना समझा आपको? ओके तो सपोज मेरे पास एक सर्किट है, ओके आई हैव वन सर्किट, इट हैज़ गॉट रेजिस्टर, इट हैज़ गॉट कैपेसिटर, इट हैज़ गॉट इंडक्टर, सब कुछ है उसके पास। इट हैज़ गॉट सम वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, अब सॉरी वोल्टेज सोर्स क्या बनाया मैंने, ओके एक छोटा मोटा होना चाहिए ना, नहीं तो वो कैपेसिटर हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। ओके बराबर है। सो दिस इज अ रेजिस्टर, दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स। ओके नाउ इफ आई आस्क कि ये वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आर है क्या इसमें? आर है, आर बोलोगे, ठीक है, बट ये रॉन्ग है। वाई? बिकॉज आर इज रेजिस्टर, दैट इज फाइन, बट कैपेसिटर इज ऑल्सो हैविंग सम रेजिस्टेंस एंड विच इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैसे लिखते हैं उसको? एक्सी, तो वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। इंडक्टर के पास जो है उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ तो उसको बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस। एंड ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो हर एक टाइम आप क्या बोलोगे? टोटल रेजिस्टेंस कितना? टोटल रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग ने एक नाम दिया एंड दैट नेम इज इम्पीडेंस। व्हाट इज इट कॉल्ड? Impedance. Okay, that is called impedance, and impedance is denoted by Z. And what is Z? Z is total resistance of the circuit. अभी समझ में आ गया कि इम्पिडेंस का मीनिंग क्या है? तो इम्पिडेंस कुछ नहीं है, इम्पिडेंस सिर्फ ऐसा, अगर एक सर्किट है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उसमें इम्पिडेंस होगा। अगर मेरे पास सिर्फ रेजिस्टर होता तो मुझे इम्पिडेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओनली दैट इज रेजिस्टर, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज आर। ओके वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करने की जरूरत नहीं, वो बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, मतलब निग्लिजिबल है वो, ठीक है। सो अगर ऐसा सर्किट है कि रेजिस्टर के सिवा और भी कुछ कंपोनेंट है आपके पास, देन यू हैव टू कंसिडर टोटल रेजिस्टेंस विच इज इम्पीडेंस, एंड इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय Z. So what is impedance? It is total resistance of the circuit. So the total opposition offered to the flow of alternating current is called as impedance. टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। समझ में आ गया? और ये मैंने सर्किट डायग्राम दिखाया। सो दिस इज व्हाट इज इम्पीडेंस। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंट डेफिनेशंस। ओके सो वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज डेफिनेशंस। ओके ऑल द definitions. Okay so पहले देखा AC and DC, then we have seen different definitions like cycle, waveform, instantaneous value, amplitude, frequency, time period, RMS value, mean value, average value, peak factor, form factor, phase angle and impedance. Okay so by heart all these definitions. Okay 4 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। बाय।